Hello everyone. In this video, let's discuss thermodynamic equilibrium. Okay. So, thermodynamic equilibrium is the state achieved by a system when it is in mechanical, thermal, and chemical equilibrium with the surroundings. So, now let's discuss about the mechanical equilibrium, chemical equilibrium, and thermal equilibrium one by one. Mechanical equilibrium. So, what is mechanical equilibrium? The state of a system in which it experiences no pressure or electric stresses, or there is no unbalanced force between the system and surroundings. As we know that mechanical is mechanical word is mainly related to the word force, so we can directly say that there is no unbalanced force between the system and surroundings. Let's write it. The state of a system in which the system experiences no force no force की जगह यहाँ प्रेशर लिखते हैं, no pressure or elastic stresses, and there is no unbalanced force between the system and surroundings. Okay. In short way, we can say that mechanical equilibrium refers to uniformity of pressure. Mechanical equilibrium refers to uniformity of pressure. In short, we can say that. Now, what is chemical equilibrium? Chemical equilibrium basically refers to constancy of temperature. Okay, the state attained by two or more systems placed in thermal contact through a diathermic wall. The state attained by two or more systems placed in thermal contact through a डायथर्मिक वॉल. डायथर्मिक वॉल हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसी वॉल जो दो सिस्टम के बीच में थर्मल कॉन्टैक्ट को अलाउ करें, उस वॉल को हम डायथर्मिक वॉल कहते हैं. ओके, सो बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम refers to uniformity of temperature. Next is what are the three equilibrium? Mechanical equilibrium, thermal equilibrium, and next is chemical equilibrium. When these three equilibriums are allowed, then a system is said to be in थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. अगर इनमें से कोई भी एक भी इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं है तो उसको हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे. तो बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम जो है रेफर्स टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ केमिकल कंपोजिशन. नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है. तो इसको डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? इफ़ ए सिस्टम इज
such that it neither shows a tendency to undergo a spontaneous change in its internal structure, such as during a chemical reaction. Nor allows transfer of matter from one portion of it to another, such as in diffusion. It is said to be in chemical equilibrium or chemical equilibrium. Basically, chemical equilibrium refers to uniformity of chemical composition. Now let's take example of a chemical equilibrium. For example, a mixture of caustic soda and hydrochloric acid will give chemical equilibrium or will attain chemical equilibrium after the reaction. जब ये इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इनके बीच में रिएक्शन होगी, तो उससे क्या बनेगा, कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर, कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा सिस्टम है वो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को अटेन होने के लिए 3 इक्विलिब्रियम में होना आवश्यक है। पहला है मैकेनिकल, दूसरा है थर्मल और तीसरा है केमिकल। अगर इन तीनों में से कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है तो हम उसको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या है वो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। So what we meant by a thermodynamic process? When the value of thermodynamic variables associated with the system change from one equilibrium state to another, the system is said to undergo a thermodynamic process. So इसको लिख लेते हैं एक बार हम। When the values of a thermodynamic variables associated with a system change from one equilibrium state to another, then the system is said to undergo a thermodynamic process. ओके, तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़े थे। 2 प्रकार के होते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, काफ़ी डिटेल में पढ़े थे हमने। वेरिएबल्स एक्चुअली थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एक्सेट्रा। When the values of a thermodynamic variable associated with the system
चेंज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट मैंने बताया तीनों इक्विलिब्रियम होने चाहिए, मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल। अगर एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, फॉर एग्जांपल ये कोई इनिशियल स्टेट है हमारी, और इसके जो प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर है वो पी आई है, वी आई है, और टेम्परेचर जो है वो टी आई है, ये हमारी इनिशियल स्टेट है। और यहाँ पे कोई प्रोसेस होती है, ये वन इक्विलिब्रियम स्टेट है, कोई प्रोसेस हुई, ये कोई अनदर फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गया, तो यहाँ पर इसकी प्रेशर जो थर्मोडाइनमिक वेरिएबल है, वॉल्यूम भी एक थर्मोडाइनमिक वेरिएबल है, टेम्परेचर भी एक थर्मोडाइनमिक वेरिएबल है, तो इसके जो थर्मोडाइनमिक वेरिएबल है वो चेंज हो गए बाय ए प्रोसेस। अब उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? थर्मोडाइनमिक प्रोसेस कहेंगे, और ये भी क्या है? एक इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है। इन ऑर्डर टू एनालाइज ए थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, इस प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए ये यहाँ से यहाँ तक कैसे गया, मतलब कि क्या प्रोसेस हुई है, उस प्रोसेस को समझने के लिए हमें एक थर्मोडाइनमिक वेरिएबल का वेरिएशन दूसरे थर्मोडाइनमिक वेरिएबल के थ्रू देखना होगा। समझ में आई बात? यानी इट इज़ नेसेसरी टू नो द वेरिएशन ऑफ वन थर्मोडाइनमिक वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा, और उस ग्राफ को हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस और डिफाइन in order to analyze a thermodynamic process, it is necessary to know the variation of one thermodynamic variable with respect to another thermodynamic variable. Such a plot is known as indicator diagram. इस प्लॉट को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। ये P वर्सेस V भी हो सकता है, P वर्सेस T भी हो सकता है, और वाइस वर्सा V वर्सेस T हो सकता है। यानी कि एक थर्मोडाइनमिक वेरिएबल का जो वेरिएशन है वो दूसरे थर्मोडाइनमिक वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। ओके, उस प्लॉट को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। नाउ अगर हम आपको कहें कि आपको अपने घर से, ये दिस इज योर होम, आपको अपने घर से अपने कॉलेज में जाना है, ओके, एंड यू आर आस्क्ड टू रिट्रेस योर पाथ। हमने कहा आप जिस पाथ से गए थे उसी पाथ को रिट्रेस करना है आपको। तो आपको क्या करना होगा? आप जिस रूट से गए थे आपको उसी रूट से आना होगा, तभी आप अपने पाथ को रिट्रेस कर सकते हो। इसी प्रकार से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर अगर हमें किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को रिट्रेस करना है तो हमें उसके हर जो उस प्रोसेस ने पाथ कवर किया है उसी पाथ को रिट्रेस करना होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज ए इंडिकेटर डायग्राम P वर्सेस V एंड देयर इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस occur फ्रॉम this equilibrium state to this equilibrium state. Let's say its thermodynamic variables are Pi, Vi initial, let's say this is initial equilibrium state and this is final equilibrium state, and its thermodynamic variables are Pf, Vf, final pressure and final volume.
Now, this thermodynamic process occur in this way. Now, if we say that we want to retrace this thermodynamic process, okay, अगर हमें इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को रिट्रेस करना है तो हमें इसके हर पॉइंट, जो ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स का हमें, इन पॉइंट्स के वेरिएबल्स को हमें पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अगर फाइनल पॉइंट से दोबारा इनिशियल पॉइंट पर जाना चाहता हूँ तो जो ये इंटरमीडिएट स्टेट हैं, जो ये इंटरमीडिएट स्टेट हैं, ये एग्जैक्टली डिफाइंड होनी चाहिए। इंटरमीडिएट स्टेट्स आर exactly defined, that is they are in equilibrium। तो सच ए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बहुत ही स्लो होना पड़ेगा, सो डैट वी कैन ट्रेस every possible state of the forward process without affecting the system and surroundings and is said to be reversible। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को डिफाइन किया है। वो क्या होती है कि when the thermodynamic variables associated with a system change from one equilibrium state to another, it is said to a thermodynamic process। ओके, अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बाद हमने क्या किया कि हमने इंडिकेटर डायग्राम को डिफाइन किया। व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम? दैट इज वेरिएशन ऑफ वन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। और हमने ऐसा क्यों किया है? ताकि किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम समझ सकें। ओके, तो उसके बाद हमने कहा कि आपको अपने घर से कॉलेज में जाना है और कॉलेज से वापस आपको अपने घर आना है विद रिट्रेसिंग इट्स योर फॉरवर्ड पाथ। तो आप ऐसा कब कर सकते हैं? जब आप जिस रूट से गए थे उसी रूट से वापस आएँ, आप ऐसा तभी कर सकते हैं। तो सिमिलरली इन द सेम मैनर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कोई हमारे पास इनिशियल स्टेट है और हम फाइनल स्टेट पर गए, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड प्रोसेस। नाउ इफ़ वी वांट टू रिट्रेस इट्स पाथ, मेरे को यही जो रूट है वो फॉलो करना पड़ेगा। और ऐसा पॉसिबल कब है? जब जो इंटरमीडिएट स्टेट हैं, जो इसके बीच वाली स्टेट हैं, वो एग्जैक्टली डिफाइंड हो। और एग्जैक्टली डिफाइंड का मतलब क्या है कि वो जो सारी स्टेट हैं वो इक्विलिब्रियम के अंदर हों। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होना चाहिए। और ऐसे प्रोसेसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस, या ये कहें सिर्फ हम रिवर्सिबल प्रोसेस आर आइडियल। अब ये वास्तव में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं नेचर के अंदर, वो सारी की सारी रिवर्सिबल होती हैं। मतलब कि इफ़ वी कैन नॉट रिट्रेस एवरी पॉसिबल स्टेट ऑफ द फॉरवर्ड प्रोसेस देन इट इज सेड टू बी इरिवर्सिबल। इसको एक बार लिख लेते हैं हम, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? इफ़ वी कैन नॉट रिट्रेस every possible state of the forward process then it is said to be irreversible।
all natural processes are irreversible। अगर हम पाथ को रिट्रेस कर लेते हैं तो वो क्या होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम पाथ को रिट्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो क्या होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब जो नेचर के अंदर जितनी प्रोसेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब नेचर के अंदर सारी की सारी प्रोसेसेस इरिवर्सिबल है तो किसी भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को हम समझे कैसे। हम पाथ तो रिट्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि जितनी भी सारी की सारी प्रोसेसेस हैं नेचर के अंदर वो सारी इरिवर्सिबल हैं। तो हम किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कैसे समझें, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट को। तो ये प्रॉब्लम ओवरकम की गई बाय डिफाइनिंग ए न्यू प्रोसेस नोन एज क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को ओवरकम किया गया क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस से। नाउ व्हाट वी मींट बाय द क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस, व्हेन ए प्रोसेस इज कैरिड आउट extremely slowly so that every state through which the system passes departs only infinitesimally from equilibrium is said to be quasi-static. This means that a quasi-static process corresponds to a succession of thermodynamic equilibrium states. एक बार लिख लेते हैं इसको। When a thermodynamic process is carried out extremely slowly so that every state through which the system passes departs only infinitesimally from equilibrium. It is said to be quasi-static. It is said to be quasi-static process. This means that a quasi-static process corresponds to a succession of thermodynamic equilibrium states. तो और प्रोसेसेस जो है नेचर के अंदर सारी की सारी इरिवर्सिबल है, लेकिन हम किसी प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो हमने क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस को कंसेप्ट को डिफाइन किया। उसके अंदर क्या है कि जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट हैं हम उन सारी स्टेटों को इक्विलिब्रियम स्टेट में मान लेते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट में मानकर हम हर एक प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो ये प्रॉब्लम थी उसको रिजोल्व किया। अगर मतलब इक्विलिब्रियम से इनफाइनाइट सिमली ही डिपार्ट होगा, मतलब इक्विलिब्रियम से थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर फाइनाइट डिपार्चर होता है तो उसको हम नॉन क्वाजीस्टैटिक प्रोसेसेस कहेंगे। तो अभी हम कुछ प्रोसेसेस को स्टडी कर लेते हैं, उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। Many a time
A series of processes undergone by a system may revert back it to its initial state. मतलब क्या है, लेट्स से this is a indicator diagram. This is our initial state and this is our final state. The thermodynamic process occurs from initial state I through this path and may revert back to its initial state from the final state by this path. यहाँ पर ध्यान रखें कि पाथ रिट्रेस नहीं हुआ है. अगर पाथ रिट्रेस होता तो इसी पाथ से जाता. तो इनिशियल पॉइंट पर जाने के दो तरीके हैं, या तो वो इसी पाथ पर जाए तो उसको तो हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिस्टैटिक प्रोसेस. अगर वो इधर से आया है तो उसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस. ओके, तो साइक्लिक प्रोसेस ये हो गई. अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे. द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट मीन्स, लेट्स से दिस इज ए इंडिकेटर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग वेरिएशन ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल वॉल्यूम. तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट. सो लेट्स से दिस इज इनिशियल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज फाइनल इक्विलिब्रियम. सो the process will occur in this way. Now another process is isobaric process. आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे. अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो इस तरह की सिचुएशन होगी. ओके, नाउ there is one more process called adiabatic process. adiabatic process के अंदर क्या होता है, there is no exchange of heat. Okay, the process in which no thermal interaction takes place between system and surroundings. Okay, तो लिख लेते हैं इसको the process in which there is को लिख लेते हैं एक बार, there is no thermal interaction takes place between system and surroundings is said to be adiabatic. And what is isothermal process? The process in which temperature remains constant. Okay, now let's discuss zeroth law of thermodynamics. It is proposed by R.H. Fowler in 1931. Actually, this law is proposed after the proposal of first law and second law, but since it is a basic law, so it cannot be third, so it is enunciated as zeroth law of thermodynamics. Okay, what this law says, that if or when the thermodynamic systems A and B
are separately in thermal equilibrium with a third thermodynamic system C, then the systems A and B are in thermal equilibrium with each other also. Now let's understand what this law says. Let's we have three systems. Please do not go through this definition till now. अभी के लिए आप इस डेफिनेशन पे मत जाइए, एक बार समझ लीजिए। इसके अंदर कुछ गैस है और ये सिस्टम सी है। अभी ये एडियाबैटिक वॉल है और ये भी एडियाबैटिक वॉल है, और मैंने इन तीनों के अंदर सेपरेट मरकरी थर्मोमीटर लगा रखा है। इसके अंदर भी ये और इसके अंदर भी। अभी हमने क्या किया कि मैंने जो ये वॉल है इसको एडियाबैटिक से हटाकर डायाथर्मिक बना दिया। क्या किया मैंने इसको, ये मैंने जो वॉल है इसको डायाथर्मिक वॉल बना दिया। ये मरकरी थर्मोमीटर है और ये मरकरी थर्मोमीटर है। यहाँ पर भी एक मरकरी थर्मोमीटर है और ये सब कुछ गैस है। यहाँ की वॉल अभी भी एडियाबैटिक है। ओके, तो जब ये डायाथर्मिक वॉल होगी तो इसका और इसका कुछ इंटरेक्शन होगा, इसका और इसका कुछ इंटरेक्शन होगा। तो कुछ समय के बाद ए और सी जो है उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बी और सी का टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस एडियाबैटिक वॉल को हटाकर डायाथर्मिक वॉल और लगा देते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर क्या किया हमने, ये तो डायाथर्मिक वॉल है और यहाँ पर भी क्या है, ये भी डायाथर्मिक बना दिया हमने और ये भी डायाथर्मिक है। ये सी है और ये ए और ये बी, ये टेम्परेचर मरकरी थर्मोमीटर है। अब जब ये डायाथर्मिक वॉल हो जाएगी तो ए और बी के बीच में भी थर्मल इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया हमने, दो एडियाबैटिक वॉल थी, अब तीनों के अंदर मरकरी थर्मोमीटर लगा रखा हमने, कुछ गैसेज हैं, तो मैंने ये वॉल हटाकर डायाथर्मिक वॉल लगा दी। तो ए और सी के बीच में जो है थर्मल इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, बी और सी के बीच में थर्मल इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन ए और बी के बीच में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एडियाबैटिक वॉल है। तो स्टेटमेंट को समझेंगे हम सेकंड डायग्राम से। इफ़ द थर्मोडाइनमिक सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम सी। अब ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। अभी तक सेकंड डायग्राम से डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं हम, यहाँ तक क्लियर है। देन द सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर आल्सो।
अब मैंने ये एडियाबैटिक वॉल है, इसको डायथर्मिक वॉल से रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा, ए और बी के बीच में थर्मल इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएंगे। समझ में आया? तो ये था। अब अभी तक हमने टेम्परेचर को डिफाइन नहीं किया था, तो जो जीरोथ लॉ है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि ये टेम्परेचर को डिफाइन करता है। मतलब कैसे, हमें कैसे पता चला कि जो ए और सी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई। अगर यहाँ से जो एडियाबैटिक वॉल है वो डायथर्मिक वॉल से रिप्लेस कर दी जाती है, तो हमें कैसे पता चला कि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है? तो हमें किस पैरामीटर से पता चला? वो पता चला हमें इन थर्मोमीटर्स के थ्रू। वो थर्मोमीटर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर। इसी तरह से हमें ए और बी का कब पता चला कि वो जो दोनों हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ गए हैं? वो हमें किस पैरामीटर से पता चला? वो है टेम्परेचर। सो हाउ कैन वी डिफाइन टेम्परेचर? द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस वेदर or not given system is in thermal equilibrium with the other system is called temperature। तो टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्चुअली में टेम्परेचर को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं। काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पर हम अलग तरीके से डिफाइन करेंगे टेम्परेचर को। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे? द फिजिकल क्वांटिटी डेट डिटरमाइंस whether one system, whether or not one system is in thermal equilibrium with the other system is called temperature। SI यूनिट क्या होती है इसकी? केल्विन। ओके। और CGS यूनिट डिग्री सेल्सियस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें जीरोथ लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस मिलता है, और वो क्या है? हमने टेम्परेचर को डिफाइन किया। तो जीरोथ लॉ का सिग्निफिकेंस जो है टेम्परेचर है। तो अगर हमें अब केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है? केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। अगर हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो हमें केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके अंदर हम 273.15 ऐड कर देंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सबसे पहले हमें टेम्परेचर को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना होगा, डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट नहीं करना है हमें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो के अंदर हम कुछ और बेसिक टर्म्स को डिफाइन करेंगे, जैसे स्पेसिफिक हीट वगैरह को। तो दैट्स ऑल, लेट्स टॉक।